Hello everyone, welcome to PT 79 series for reading filling the blanks. This is fifth video in this series. It means that 4 videos are already out there जिसमें हम highly repetitive reading filling the blanks discuss कर चुके हैं logics के साथ so that आपको भी वो clear हो और अगर आपको logics clear हो गए और अगर आपके पेपर में वो reading filling the blank आ गई तो I'm pretty much sure कि आपके उसमें full marks आएंगे. So before getting started, a lot of congratulations to those students in PTE, CELPIP, IELTS जिन्होंने अपना टारगेट्स को अचीव किया है. पीटी में प्रिया चाहल, हरप्रीत, रजिता, प्रियंका सबने अपना 79 प्लस टारगेट स्कोर अचीव किया है एंड इन दिस वीक ओनली. एंड आइल्स में हरलीन, किशोर, अमनदीप, जसविंदर all have scored 8777 and CELPIP में शाहीन has scored CLB 10 each. So a lot of congratulations to all and let's get started. My name is Bhrat Brij. You know that I have scored a perfect 90 in all the 10 skills. कैसे score किया है, क्या criteria थे, क्या strategies थी. This is what I share with you all. And today's topic is PTE Reading. कितने minutes की होती है? 32 to 41 minutes. कितने question types आते हैं? 5 question type. But is it scored out of 90? No, it is not scored. And those students who are watching this video for the first time थोड़े से हैरान होंगे वो कि हैं 90 में से नहीं score होती है. The answer is no. So you will ask sir कितने में से score होती है? I am going to give you the answer shortly. And today's topic will be reading filling the blanks. Readings में अब order fix हो चुका है, so they are always fourth. And always remember reading में एक section timer चलता है which is integrated for all the questions, so you have to do the time management yourself. So what is the real PT reading scoring? If you see जो 90 बनता है total का, it comes from speaking also, from writing also and listening also. Reading तो है ही है. Now you might ask कि क्या criteria है, किस हिसाब से scoring होती है, क्या सारे questions equally important है? The answer for this question you will get to know when you are part of Marvel PTE family, when you join our coaching in institute or online. Then we discuss everything in detail and we have students all over the world. Australia से हो, New Zealand से हो, India से हो, पंजाब में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, महाराष्ट्र, दिल्ली, NCR से. We have students from all across the world, even Dubai, UAE से बहुत सारे students हैं जो हमारे online coaching ले रही हैं. So what is the reading filling the blank strategy for us? As I said that it is an integrated timer, so आपको हर question पे अपना timer का खुद ध्यान रखना होता है. So you can spend a maximum of 2 to 2.5 minutes on this. And what is the common mistake जो students करते हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक वो करते हैं, वो सारे वर्ड्स पढ़ते हैं. क्या सारे वर्ड्स पढ़ने की जरूरत होती है? द आंसर इज नो, बट यू हैव टू डू द स्किमिंग. अब स्किमिंग क्या है? एंड इफ यू वांट टू सी दिस इन डिटेल देन यू विल बी प्रोवाइडेड अ लिंक. आपके एंड में प्लेलिस्ट का यूआरएल मिल जाएगा एंड ऊपर आई बटन में सजेस्टेड वीडियोस में भी वो प्लेलिस्ट का यूआरएल आ रहा होगा और साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा. सो यू कैन वॉच द फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज टू सी एवरीथिंग इन डिटेल. सो व्हाट इज आवर रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक स्ट्रेटेजी? हमारी रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामर. कंटेक्स्ट में हम रीडिंग करते हैं कंटेंट की, बट इट इज नॉट रीडिंग, इट इज स्किमिंग. एंड देन फॉरवर्ड रीडिंग से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बैकवर्ड रीडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको टोन पता होगी तब भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. लेक्सिकल रिसोर्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द कॉलोकेशंस, फ्रेजल वर्ब एज वेल एज वोकैब. इन तीनों की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू क्रैक द रीडिंग. एंड व्हाट दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन दीज वीडियोस सो दैट आप भी अपनी रीडिंग सेक्शंस को इंप्रूव कर सकें. एंड ग्रामर में टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैरेललिज्म, एक्टिव पैसिव, preposition, subject verb agreement, all these are taught to our online subscribers. अगर आप हमारे advanced members हैं या elite member हैं online में या institute में हमसे coaching ले रहे हैं PTE की, then we are going to teach you all these concepts. And there are 2 reading modes in our software. One is the exam mode. Exam mode वो mode है जब आप on करोगे when your paper is near, बहुत ज़्यादा जो highly predicted या repetitive questions हैं वो आते हैं. And then it's a time mode. Time mode बहुत important है आपके लिए. अगर आपने अभी practice start की है, अभी आपको strategies नहीं build up हुई, आप थोड़े यूज टू नहीं हुए हैं सिस्टम से, पीटीई के फॉर्मेट, क्वेश्चन फॉर्मेट से, तो आप टाइम मोड ऑफ करके प्रैक्टिस कर सकते हो. बट व्हेन योर एग्जाम इज नियर, बिकॉज यू हैव टू डू द टाइम मैनेजमेंट योरसेल्फ, आपको टाइम प्रेशर पता होना चाहिए, कैसे टाइम प्रेशर में आपको वर्क करना है. एंड देन यू आर गोइंग टू टर्न दिस टाइम मोड ऑन और अपने आप इन फॉर रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स आफ्टर 120 seconds द क्वेश्चन इज गोइंग टू ऑटो सबमिट. सो यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस कि आपको विद इन 2 minutes रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है. Without any further delay, this is the topic for today, reading filling the blank number 5. As usual, I am giving you 30 seconds to skim this and I will be back after 30 seconds.
Okay, so I'm back now. So first let's see the skimming process, कैसे skim करना है so that you can quickly solve this also. Plants serve as a conduit. Conduit is your channel. You can say it like channel of energy into the biosphere, provide food and materials used by humans and they समथिंग आर environment. अब आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं? डिग्रेडेशन, प्रोटेक्शन, शेप, सिंप्लीफाई, पावर, सोर्स. सो अब हम एक एक फिट करके देखते हैं कौन सा इनमें फिट होता है, कौन सा नहीं फिट होता है. डिग्रेडेशन आर इन्वायरमेंट नहीं होगा. डिग्रेडेशन ऑफ हो सकता था, अगर होता यहाँ पे ऑफ होता वी वुड हैव कंसीडर्ड. सो विद यूजिंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस. सेम रीजन के कारण हम प्रोटेक्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स पुट फर्स्ट सिंप्लीफाई. क्या प्लांट्स सिंप्लीफाई करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को? क्या यहाँ पे किसी तरह से कोई कंटेक्स्ट बन रहा है सिंप्लीफाई का? द आंसर इज नो. पार आर इन्वायरमेंट. ओके, वी माइट कीप बिकॉज यू माइट थिंक क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है यहाँ पे पार हो सकता है. सोर्स आर इन्वायरमेंट वैसे ही नहीं हो सकता. हमारे इन्वायरमेंट को कौन सा वो सोर्स कर रहे हैं. एंड देन द लेफ्ट वन इज शेप. सो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, शेप और पार. पार इज अ स्मॉलर टर्म. अगर आप सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हो तो मे बी वी कैन कंसिडर, बट यहाँ पे आप उनकी मटीरियल्स की भी बात कर रहे हो कि वो प्रोवाइड करते हैं मटीरियल्स की जो कि ह्यूमंस यूज करते हैं. सो द सेम थिंग लाइक वी से उसको बनाना, what we say is shape, shaping our future. हम अपने फ्यूचर को संवारते सजाते हैं, शेप क्रिएट करते हैं वो अपने फ्यूचर को. सो दैट्स हाउ शेप यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएटली फिल लगेगा बिकॉज दे शेप आर इन्वायरमेंट थ्रू प्रोवाइडिंग फूड, थ्रू एक्टिंग एज अ चैनल ऑफ एनर्जी, जिसके कारण हमारे वो हम इन्वायरमेंट को शेप अप करते हैं, जिसे हम कहते हैं वी आर शेपिंग अप आवर फ्यूचर. आप पीटी इसलिए दे रहे हैं बिकॉज यू वांट टू शेप योर फ्यूचर. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे शेप फिल करके नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू सी, यहाँ पे नाउ द थ्री मेजर चैलेंजेस. यहाँ पे अब चैलेंज की बात हो रही है. फेसिंग ह्यूमैनिटी इन आवर टाइम आर फूड, एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक आइडिया हो जाता है यहाँ पे क्या आएगा, या डिग्रेडेशन आएगा या प्रोटेक्शन आएगा. बट द क्वेश्चन इज दिस, चैलेंजेस की बात हो रही है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को फिल कर देते हैं वो सही होगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. द रीजन बिकॉज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक तरह से कंसेप्ट है, एक नोशन है, बट चैलेंज क्या है? चैलेंज इज डिग्रेडेशन, कि हमें एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने नहीं देना चाहिए. वो चैलेंज होगा, ना कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. वो चैलेंज नहीं हो सकता. दैट इज अ कंसेप्ट, दैट इज अ नोशन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट डिग्रेडेशन ओवर हियर. एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. आपने देखा बिना सारे वर्ड्स पढ़े, सिर्फ कंसेप्चुअल बेसिस पे, कंटेक्स्ट के बेसिस पे वी कैन सॉल्व दिस. अब यहाँ पे बात करते हैं प्लांट्स आर अ समथिंग ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. अब यहाँ पे समथिंग क्या आएगा? प्रोटेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो सकता. अब पावर और सोर्स. अब आप पावर ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कहते हैं. हमारे पास अगर हम कंटेक्चुअली बात करें तो सिर्फ एक ऑप्शन ही फिल होता है विच इज सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटेक्शन. एंड लेट्स सी इफ द आंसर्स आर करेक्ट. यस, ऑल द आंसर्स are correct now. You saw how easy it is. अगर आप उसको फॉरवर्ड रीडिंग से समझ पाए, बेसिक स्किमिंग से समझ पाए, आपको सारे वर्ड समझने की ज़रूरत ही नहीं है. बहुत स्टूडेंट्स यही एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो सारे वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट द करेक्ट स्ट्रैटेजी. आपके पास कितना टाइम होता है? हार्डली यू हैव 2 to 2.5 मिनट. और उसको फर्स्ट 30 to 60 सेकेंड में आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट 30 to 60 सेकेंड्स में आपको वो कंटेंट को स्किम करना चाहिए. एंड देन रिमेनिंग टाइम विच इज़ 90 to 120 सेकेंड्स, उसमें आपको क्या करने चाहिए? यू हैव टू लुक फॉर क्लूज, यू हैव टू फाइंड पॉइंटर्स. दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड विच इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. अगर आपने ध्यान दिया तो हम कैसे एक एक ब्लैंक को फिल करके एलिमिनेट करके हैं जो हमें वो कंटेक्चुअली सही नहीं लगता है. सो दीज आर द मेथड्स थ्रू विच यू कैन सॉल्व रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स क्विकली. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ ट्रॉफी विच यू हैव टू विन. ट्रॉफी इज योर 79 प्लस स्कोर, 65 प्लस स्कोर, 58 प्लस स्कोर या 50 प्लस स्कोर, जो भी आपका टारगेट स्कोर हो. बट अगर आप मार्वल पीटी की स्ट्रैटेजीज को नहीं फॉलो कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो, you will not be able to win this trophy. But if you are following our strategies, you will be definitely winning this trophy which is getting to your target score. And always remember, practice is the key. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा रीडिंग इंप्रूव होगी, उतनी ज़्यादा पीटी में आपके परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. This is our WhatsApp number 8699121121. You can WhatsApp us anytime and we are here 24/7 to solve your doubts. And do not forget to subscribe to our channel क्योंकि हम ऐसी वीडियोस ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस अपलोड करते हैं जिससे आपकी रीडिंग इंप्रूव हो, through which you can achieve your target score. We give wings to your dreams.